In this lecture we study about the pH scale to measure the strength of the acid and base, and now we study about some different compounds present in the form of the acidic and basic, and does the acid or base conduct the electricity. We know the property of acid and base. In the previous lecture we have studied about that the acid and base both are containing the H plus and OH minus ion, and both are the conductor because presence of H plus ion, OH minus ion. In the solution, free ions are present, free cations are ions, anions are present, so they conduct electricity. On passing electricity, definitely the ions produce salt dissociate into the part of S plus ion and minus ion, produce H plus ion, produce OH minus ion, produce cation, produce anion. So we can say they conduct the electricity, and acid and base both are the conductor of heat and electricity. Now in the figure 2.3 it is given a beaker is filled with the solution of dilute H2SO4. Rubber cock, in the rubber cock two nails are fitted. They are connected with the batteries and bulb. After some time you will see the dissociation has started and it passed the current. Yeah, you can say the pass the current through the battery to solution. Then after you will see the current, the bulb will start glowing. So we can say the also acid conduct the electricity because presence of H plus ion, another minus ion. Now in the previous lecture we have discussed when the acid and base react with water always form salt. In the case of acid it produces the H2 means hydrogen gas, but in the case of base it produces the salt as well as the hydrogen gas. We can say in the both case the hydrogen is released. Here the 2.4 the two diagrams are given. The preparation of HCl gas. Now H2SO4 dropper containing H2SO4 and pair of tongue hold the test tube and sodium chloride is there. Then H2O is added into sodium chloride. The reaction is possible. H2SO4 plus NaCl, you will get the HCl and Na2SO4. Now see at the whiteboard. Now look at the whiteboard. 2NaCl plus H2SO4, 2HCl and Na2SO4 obtained as a product. Now in the equation you will see the HCl react with H2O and it's give a H3O plus and Cl minus. It means H plus is added into the HCl, it gives H3O plus and Cl. अच्छा प्लस जो ऐड हो रहा है वो बिकॉज ऑफ H प्लस आयन जो है यहाँ पे आके जब वाटर में ऐड होता है, जब H2 डिसोसिएट होगा या HCl डिसोसिएट होता है तो ऑलवेज गिव्स H प्लस आयन. तो यहाँ का जो HCl का H प्लस आयन है वो आगे ऐड हुआ, दैट इज H3O प्लस आयन एंड Cl माइनस. ये H प्लस आयन ही किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है. ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए H प्लस आयन का यूज़ करा जाता है. सिमिलरली देखिए NaOH जो है डिसोसिएट इनटू फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड OH माइन. जहाँ वहाँ पर H प्लस आयन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताता है, यहाँ पे OH माइनस आयन जो है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताता है. ये बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है कि कितना बेस ज़्यादा होगा या कितना बेस कम होगा, उसके अकॉर्डिंग बताता है. चलिए आगे देखते हैं. Similarly, KOH dissociate into the K plus ion and OH minus. MgOH को होल्ड टाइट डिसोसिएट इनटू द M डबल प्लस आयन प्लस 2OH आयन. देखिए यहाँ पर अगर बताएं 2OH आयन रिलीज हो रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देन KOH से, क्योंकि KOH में एक OH आयन होता है. ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, इसलिए इस लेक्चर में भी रिवाइज कर रहा हूँ कि जिनमें ज़्यादा H प्लस आयन होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जिसमें ज़्यादा OH आयन स्ट्रॉन्ग होंगे ज़्यादा OH होता है. अच्छा, नेचर के अंदर नेचर मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. वी आर ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्लांट एनिमल्स वी आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, so we can say the organic product are more in nature and organic compound are mostly acidic in nature. ओके, तो एसिड्स ज़्यादा है नेचर के अंदर, बेसिस कम है. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं. ठीक है, देखिए आगे. ऑल द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन द वाटर. द एल्कली बेसिस दैट डिजॉल्व इन द वाटर दे आर सॉफ्टली टू टच. अच्छा, एल्कली बेसिस क्या होते हैं? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. आगे आने वाले समय आप कुछ मेटल्स पढ़ेंगे. एस ब्लॉक की कुछ मेटल्स होती हैं जो एल्कली बेस बनाती है, जबकि उसके अलावा दूसरे जो बेसिस होते हैं वो एल्कली होते हैं और कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते. जैसे अगर हम बात करें KOH, NaOH,
KCl, MgOH, whole twice, they alkali base, they are completely dissolved in the water. बट अगर हम नॉन एल्कलाइन बेसिस की बात करें, जैसे हम ZnOH3 की बात करें, AuOH की बात करें, AgNO3 की बात करें, AgOH की बात करें, तो ये एल्कलाइन बेस नहीं होते हैं, इसलिए डिज़ोल्व नहीं होते और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यू नो वेरी वेल. नाउ ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी. अच्छा, द डिज़ोल्विंग ऑफ एन एसिड आर बेस इनटू द वाटर ऑलवेज, not water mixed into the acid, because it always perform exothermic reaction, cause burning of body, burning of any components of our body, any parts of our body, due to the exothermic process. Okay, now the some questions are given, why do the HCl and H3 are acidic in depend on the H plus ion. ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट आपको असाइनमेंट में दिए जा चुके हैं, यू कैन डू इट. ओके, आगे हाउ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आर आइडेंटिफाई. देखिए, मैं बार बार आपको समझा चुका हूँ कि जहाँ पर H प्लस आयन ज़्यादा रिलीज़ होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जहाँ पर मोस्टली OH आयन रिलीज़ होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. जितने H प्लस आयन रिलीज़ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितने OH आयन रिलीज़ होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. इसके अलावा जो स्केल, ये देखिए यहाँ डेफिनेशन दी है, स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन सोल्यूशन कॉल्ड pH scale has been developed. pH for the potential in the German, the meaning power. तो pH स्केल जो होती है एक्चुअली पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, और ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए होता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और वीक है. इसको देने वाले साइंटिस्ट है सोरेनसन. सोरेनसन गैप द स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन एसिडिक और बेसिक नेचर. It has the 14 value 0 to 14. Now we will see what is the scale parameter. Now look at the screen, diagram is given. 0 to 7, this is the acidic strength, and 7 to 14 is the basic strength. 0 to 7 you will see the acidic strength continue decreases. Okay, now basic strength 7 to 14 increases. इसको आप हमेशा इस तरीके से समझिए कि 0 से जब 7 तक जा रहे हैं तो ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस. ABCD में जैसे ए पहले आता है वैसे पहले एसिड और फिर बेस. फिर एसिड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ 0 पर सबसे ज़्यादा होगी, यानी हम बात करें HCl, H2SO4, HNO3 की बात करें तो उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 के आसपास होगी. और जो वीक होते जाएंगे उसके बाद जैसे जैसे बेस pH बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिड वीक होता जाएगा. जैसे ही एसिड की स्ट्रेंथ 0.7 पे जाती है, सो इज बिकम अ न्यूट्रल, मतलब नो एसिडिक कैरेक्टर, नो बेसिक कैरेक्टर. वो 7 से जैसे जैसे pH इंक्रीज होगा तो इट्स बिकम अ बेसिक नेचर. ओके, इसको अपन डायग्राम से समझते हैं. लुक एट, ड्रॉ द वन डायग्राम, ड्रॉ द टू लाइन्स एट कॉर्नर एंड एड इट दिस टाइप. इससे आपको इजी तरीके से याद होगा. अल्फ़ाबेट में हम ए पहले लिखते हैं और बी बाद में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एसिड और बेस. देखिए यहाँ 0 लिखिए, यहाँ पर 7 लिखिए और यहाँ पर 14 लिख दीजिए. बीच में जो वैल्यू आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14. तो ये जो आगे वैल्यूज दी हैं आपको 1 to 7, यानी 6.99 को भी हम एसिड कहेंगे. ये एसिड के लिए और ये बेस के लिए. देखिए अब इस तरीके से होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ एरिया बड़ा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी 0 पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और 1 पर फिर कम हो जाएगी, फिर 2 पे और कम हो जाएगी. 3 पे आज जो है वीक एसिड्स लगना चालू हो जाते हैं. दे ओकर नेचुरली इन फूड आइटम्स, इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. आपने पढ़ा होगा मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जो खट्टी चीज़ होता है उन्हें सिनेमिक एसिड होता है, विनेगर एसिड्स होता है, एपी में सिट्रस एसिड होता है. तो ये नेचुरल एसिड्स होते हैं. और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स कहे जाते हैं. नेचर से होकर होते हैं बट प्लांट और एनिमल से होकर नहीं होते. इन्हें लेबोरेटरी में भी तैयार किया जाता है. इनऑर्गेनिक एसिड मोस्टली ऑर्गेनिक लेबोरेटरी में तैयार करते हैं. ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, याद रखिएगा. इनऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो सारी केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड नेचुरली वो करते हैं. और नेचर में जो पाया जाने वाला बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है. और
एक नॉर्मल वाइटल फोर्स के कारण जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जबकि बेस में अगर हम देख रहे हैं तो पीएच स्केल लगातार बढ़ेगा, 7 से जैसे ही आगे तक वैल्यू जाएगी तो वो 14 होता जाएगा। 7 जनरली माना जाता है कि पीएच स्केल वाटर का होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि हम जो वाटर पी रहे हैं वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो जनरली सब ये पढ़ाते हैं कि वाटर इज़ अ न्यूट्रल। भैया जो हम वाटर पी रहे हैं इट इज़ नॉट न्यूट्रल। रेन वाटर इज़ अ न्यूट्रल बिकॉज वो प्योर होता है। वो भी फर्स्ट और सेकेंड रेन होने के बाद जब वाटर कंटिन्यू गिरता है रेन वाटर, तब वो प्योर होगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल है ना, वेपर पार्टिकल है। जब रेन ऊपर आती है तो उसमें मिक्स होते हैं और उसको चार्ज कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेन वाटर भी कम्प्लीटली न्यूट्रल नहीं होता है, फर्स्ट सेकेंड रेन के बाद ही वो न्यूट्रल होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें जो हम ड्रिंकिंग वाटर करते हैं वो क्या न्यूट्रल होता है? नहीं, वो बेसिक नेचर कंटेन करता है, यानी उसका पीएच 7 से कुछ ज़्यादा का 7.8 समथिंग पीएच होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्योंकि ज़मीन से जब निकलता है, सॉइल से जब निकलेगा, अंडरग्राउंड वाटर होता है। इन द मिनरल्स मीन्स आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, है ना, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है मिनरल्स की फॉर्म में अर्थ में रहते हैं। और अर्थ में से जब वाटर बाहर आता है तो दे गेट द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। दैट्स वाई द वाटर we drink, the nature of that water is like a basic, its pH approximate 7.8, more than the neutral pH of water. Okay, I have explained at the whiteboard and also that thing is given in the diagram. Now look at the next. देखिए, saliva before the meal, saliva after the meal, definitely pH becomes changed. लेमन जूस इज नेचुरल, ठीक है। ये सब पीएच जो है इनके 3 से ज़्यादा पीएच होगा और 7 से कम होगा बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर एंड वीक एसिड्स होते हैं। कलरलेस, कलरलेस जो है एरेटेड ड्रिंक जो होते हैं, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टेप वाटर, ये सब जो है आप इनका पीएच अगर आप निकालेंगे तो लास्ट के जो दिख रहा है या लास्ट के जो 3 दिख रहे हैं ये आपको बेसिक नेचर के दिख रहे हैं। लास्ट में जो टेप वाटर मैंने आपको बता चुका हूँ बेसिक होता है, NaOH बेसिक होता है, HCl एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। अगर 1m और 1m क्या होता है? मोलरिटी है, ये कंसनट्रेशन होती है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए, लेबोरेटरी में पीएच स्केल को या एसिडिक बेसिक स्टेट को निकालने के लिए एक पीएच स्केल होता है। अच्छा, ये पीएच स्केल दिमाग में ऐसा मत बिठा लीजिएगा कोई स्केल होता है, जैसे हम कॉपी पे लाइन खींचते हैं तो उसके लिए एक स्केल होता है, वैसे ही पीएच एक स्केल होता है, ऐसा नहीं है। पीएच एक पेपर होता है जिस पे कलर होते हैं, 14 टाइप के अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। जब भी आप पीएच पेपर जो है पिंक कलर का या येलो कलर का एक पेपर होता है पीएच पेपर। इस पेपर को जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं एसिड या बेस के, अगर एसिडिक नेचर आता है तो उसका कलर 0 से लेके 7 के बीच में कलर शो होता है, और अगर बेस होता है तो उसका कलर 7 से 14 के बीच में होगा, और न्यूट्रल होता है तो नो चेंज कलर रहता है। तो ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है, इस टाइप की कलर की एक स्ट्रिप होती है पीएच कलर। उसमें पीएच पेपर मैंने बताया आपको येलो कलर या पिंक कलर में आता है, लाइट पिंक में। या उसको डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, और उस कलर जब चेंज होगा सॉल्यूशन में डिप करने पर उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, मैच करेंगे ये पीएच स्ट्रिप से कि किसके जैसा आ रहा है। अगर डार्क ग्रीन कलर है, डार्क ब्लू कलर आ जाता है तो आप बोलेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और डार्क अगर पिंक कलर आता है, डार्क रेड कलर आता है तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और धीरे धीरे कलर अगर पिंक का कलर धीरे धीरे लाइट होता जाता है तो वो वीक एसिड होता है। इस तरह ग्रीन कलर अगर धीरे धीरे लाइट होता है, ब्लू कलर धीरे धीरे लाइट कलर हो जाता है, लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू में, तो आप कह सकते हैं वीक बेस है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है तो पीएच वैल्यू कम होगी, और जब बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज पीएच सेंसिटिव, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। आवर बॉडी मेड अप द एसिडिक कैरेक्टर, इन आवर ब्लड द बेस आर प्रेजेंट, इन ब्लड द मिनरल्स आर प्रेजेंट। तो हमारी बॉडी के जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, जो ब्लड को मेंटेन करना है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करना है, इसके लिए पीएच यानी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर में होती है मोस्टली। स्टमक से एसिड रिलीज़ होता है, जबकि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो इस तरीके से एसिड और बेस दोनों मिलके बॉडी टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, अच्छा, ये मत सोच लीजिएगा कि 0 या अप्रॉक्सीमेट
हमारा जो बॉडी के अंदर पीएच अगर हम मेज़र करेंगे 7 आएगा। मैंने बोला दोनों मेंटेन करते हैं, किसी टाइम एसिड ज़्यादा होता है, किसी टाइम बेस ज़्यादा होता है, इस तरीके से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन। क्या रेन वाटर में पीएच होता है? यस, रेन वाटर का पीएच देखो, पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इज़ कॉल्ड द एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन मैंने बताया प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, बट एसिड रेन जो उसका पीएच कम होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल है उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। जब वाटर नीचे गिरता है तो उनके साथ ये जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस पार्टिकल हैं, ऐड होकर एसिडिक नेचर क्रिएट करते हैं। हार्मफुल गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐड होकर उसको एसिडिक नेचर क्रिएट करते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। क्या ये एक्वाटिक एनिमल, मतलब जो पानी के अंदर एनिमल हैं उसके लिए हार्मफुल है? तो यस, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर एक्वाटिक एनिमल, बिकॉज पानी का अगर पीएच बढ़ जाएगा तो जो एक्वाटिक एनिमल है कैन नॉट सेपरेट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, है ना। जो पानी के अंदर ऑक्सीजन थे उसको एक्सेप्ट करके ब्रीथिंग करते हैं एक्वाटिक एनिमल। उनके गिल्स में वाटर डिज़ोल्विंग ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। अगर ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा तो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, सेपरेट होना बंद हो जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकग्राउंड? ऑलवेज मोर देन द 7। अच्छा, आपको परफेक्ट पीएच भी याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद रखिए कि एसिडिक कैरेक्टर है बेसिक कैरेक्टर तो मोर देन पीएच, और एसिडिक कैरेक्टर लेस देन 7 पीएच। ये आपको बताना है कि वाटर का पीएच एसिडिक होता है। यस, यू कैन से द वाटर पीएच इज़ बेसिक बिकॉज ऑफ द मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, एंड द प्रेजेंस ऑफ मिनरल द कैरेक्टर ऑफ इज soil becomes acidic. Due to the acidic character, due to the basic character of soil, plant grow in form of the acidic character. हर जगह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, बिना न्यूट्रलाइजेशन के कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं। पीएच इज डाइजेस्टम। आपने देखा होगा जब भी हम ऑयली फूड खाते हैं या कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए वी टेक द एंटासिड्स, है ना। आप देखते होंगे इनो पीते हैं, कई बार डाइजिन पे जाता है, तो दे डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर टू मेंटेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू कंट्रोल द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ आवर स्टमक। पीएच चेंज इज द टू। यस, हमारे माउथ में जो स्लाइवा होता है वो एसिडिक कैरेक्टर होता है। यदि आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो मीठा खाने पर उसका एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ेगा, तो पीएच उसका कम होगा और दांत जल्दी सड़ना चालू हो जाएंगे, यानी दांत में जो है ब्रेकिंग प्रोसेस, थिनिंग प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगी। उसको कंट्रोल करने के लिए वी यूज़ द कोलगेट एंड वी यूज़ द सम पेप्सोडेंट्स, वी यूज़ द सम टूथपेस्ट, बिकॉज द नेचर ऑफ टूथपेस्ट इज बेस, एंड बेस रिएक्ट विद एसिड एंड डिक्रीज द पीएच, अफेक्ट द पीएच एंड इंक्रीजिंग द पीएच वैल्यू, है ना। तो एसिडिक को बीक करने के लिए पीएच वैल्यू को बढ़ाता है टूथपेस्ट। ओके, ना सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। आपने देखा होगा चींटी या चींटे जो होते हैं, या आपने मधुमक्खी हनी बी का नाम सुना होगा, जब वो अपने आप को सेव करने के लिए डंक मारती है तो उससे फॉर्मिक एसिड करके निकलता है, जो अपनी सेफ्टी के लिए भी एनिमल एसिड निकालते हैं। अच्छा, हम देखते हैं पॉइजन की बात करें, जो स्नेक काटता है किसी को तो जो पॉइजन है वो इट इज़ आल्सो एसिडिक। वो जब काटता है तो हमारे ब्लड के अंदर जो है हमारे ब्लड के अंदर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और ब्लड क्लॉट होना चालू हो जाता है और आदमी मरने लगता है। तो कई एनिमल अपने आप को बचाने के लिए एसिडिक कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। बेटा, आपने देखा होगा इन द समर सीजन मदर एंड इन डिफरेंट हाउसेज दे यूज़ द पुदीना लीव्स, पुदीना की गोलियाँ रहती है टू मेंटेन द एसिडिक कैरेक्टर इन दी समर सीजन में ज़्यादा फूड खाने के कारण आपने देखा होगा एसिडिक कैरेक्टर जनरेट होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए पुदीना की हर्ब्स ली जाती हैं, लीव्स ली जाती हैं। ओके, देखिए ये सब फूड दिए हैं, फूड आइटम दिए हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड देखिए विनेगर में एसिडिक एसिड है, ऑरेंज है, ठीक है। आपको एसिड तैयार करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे दिए हैं वो हम तैयार करेंगे। थैंक यू।